مقامی زمیندار نے اپنی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کی شرط پر دے رکھا ہے۔ ان کی گزر اوقات کا واحد ذریعہ ڈب کی رسیاں بنانا ہے۔ مسلسل محنت اور تھکا دینے والی مشقت کے باوجود یہ خاندان ہمیشہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم رہا۔ اسا پہلے جیری کوندر گھینا دیا سے نا او بھئی تھولے اساں یہ تھی کہ آندے سے ٹھیکیدار کول پیسے شیسے گھن کے تے ڈیب گھن دیا سے بھی تھوڑی جی کے خرید کریں دیا سے بھی جتنی اپنی اوسط مطابق بھی اگلا قرضے پور تنگ نہ کرے سکو جی میں ہوندا بھی اپنا یہ گزارے دا حال تو اوے کیتی رہے ہیں۔ لیکن بغیر سرمائے کے زندگی کی گاڑی چلے تو کیسے؟ تاہم کلثوم بشیر اس خاندان کے لیے مسیحا کے روپ میں آئی اور ہاجرہ بی بی کو کمیونٹی آرگنائزیشن کا ممبر بنایا۔ میں کو کلثوم بشیر انہاں بھی دسے بھی سارے چاکی چے کام تھیندا پے میہندا بھی اسا اتھاں گئے ہیں وہ تو اتھاں بہت سارے لوگ اکٹھے تھائے پے ہیں۔ ہاجرہ بی بی نے کمیونٹی آرگنائزیشن سے قرضہ لے کر اپنے اس آبائی پیشے کو وسعت دینے کی حکمت عملی تیار کی۔ ہاجرہ اپنے خامند کے ساتھ مل کر تھوک ریٹ پر ڈب خریدتی ہے اور یوں اسے ٹھیکیدار کو دگنا معاوضہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ تے ہن چلو قرضے نہ لیے جو بھی اساں جرا نا ڈب زیادہ گھینا دے تے چلو سارا مسئلہ زیادہ حل تھی ویندا ہے۔ چلو کوئی نہ کوئی شے ساکو بچ ویندی ہے، کوئی لیلا گیدا چا کوئی پہاڑو گیدا چا چلو اپنا ایو کار گیدا تے وا تگا قرضے والا واپس کر چھوڑا۔ ہن فرق اتنا پے گیا جویں ہن اپنا ایک تو زندگی ساری اچھی ہو گئی ہے جی تے اس تو بعد کاروبار ہی اچھا ہو گیا تے ساڈا سلوک ہی اچھا ہو گیا جی۔ جڑے بندے اعتراض کرے نان وہی ہن آپا تے خوش ہیں، کاروبار ہی بھائی اچھا ہے اور سکیم چنگی ہے جی۔ بھی سکیم دے رلن نال میں کو اتنا فائدہ تھی گیا بھی میری گھر بھی عزت ہے تے بھئی سمجھ بیر بھی عزت ہے۔ ہاجرہ بی بی اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اپنے 2 بچوں کو تعلیم دلوا سکے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ خوشحالی کمیونٹی آرگنائزیشن کے روپ میں ہاجرہ بی بی کے گھر میں اپنا پہلا قدم رکھ چکی ہے۔ یہ صرف ہاجرہ بی بی کی کہانی نہیں، ملک کے گوشے گوشے میں ایسی لاکھوں کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غربت اور محرومی کی گود میں آنکھ کھولی لیکن ہمت نہیں ہاری اور تمام مشکلات کا بہادری سے سامنا کرتے ہوئے اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول بنا لیا۔ ضلع خوشاب پنجاب کا ایک دور دراز اور پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں کی تحصیل قائد آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر DB 36 کی رہائشی سریا خانم ایک بہادر اور دوسروں کے کام آنے والی خاتون ہے۔ سریا خانم نے اپنے علاقے اور عورتوں کے مسائل حل کرنے کا سوچا تو اس نے اپنے شوہر کی اجازت اور تعاون سے گاؤں میں کمیونٹی آرگنائزیشن بنائی، جس کے بعد گاؤں کی عورتوں نے NRSP کے تعاون سے مسائل کے حل کی جانب پہلا قدم بڑھایا۔ ہماری ٹیچر تھی وہ جس سے میں پڑھتی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ اس کو کہتی ہوں کہ یہ تنظیم بنا لے۔ مجھے کہنے لگی سریا آپ نے تنظیم بنانی ہے۔ میں کہ ثانی میں نے تنظیم نہیں بنانی، اس لیے کہ تنظیم نہیں بنانی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ قائد آباد کس طرح جانا ہے، کہاں میں خوشاب میں کس طرح جاؤں گی، یا اگر مجھے میاں والی میں جانا پڑے تو میں کس طرح جاؤں گی۔ کہنے لگی نہیں تو نے بنانا ہے۔ چلے تنظیم بن گئی، تنظیم بن گئی 95 میں تنظیم بنی تو اس وقت ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ تنظیم میں بہت مشکلات آئیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب گاؤں سے عورت باہر نکلتی ہے تو اس میں سے انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، اس کو باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی، لیکن سارے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اگر لوگوں کی باتیں سن کے بندہ ایک اندر بیٹھ جائے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ سب سے بڑی بات میرے ساتھی کی ہے جس نے مجھے اجازت دی تو میں اس کی اجازت کی وجہ سے باہر کام کرتی رہی۔ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ۔ سریا خانم نے اپنی CO کے صدر کی حیثیت سے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم
और ट्यूबवेल लगाने जैसे अहम मंसूबों पर काम किया। इस सीओ के जरिए बहुत सी औरतों को आगे बढ़ने का मौका भी मिला। कुछ हमारी ख़वातीन थी, वो हमारे चक की 36 DB की और दूसरी जो 37 DB की और 38 DB की, और वहाँ से वो 25 का हम ग्रुप गए लाहौर में। वहाँ पे हमने सिलाई की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करके गाँव में बच्चियों को सिखाती रही, शादीशुदा को, गैर शादीशुदा को सिखाती रही, काम करती रही। फिर अदारे वाले कहने लगे कि अगर किसी ने कोई कर्जा लेना है तो वो ले सकता है। किसी ने कहा कि हमने ज़मीन मुबारक करनी है, उनको वो कर्जा लेके दिया, उन्होंने अपनी ज़मीनें बनाई। सुरैया खानम की मिसाल से मुतासिर होकर इर्द गिर्द के देहात की खवातीन भी मैदान अमल में आ चुकी हैं और मिलकर LSO बनाने की जानिब रवां दवां हैं। 32 तंजीमें हैं हमारे गांव में, लेकिन ये है कि हमारे गांव में इतना है कि 100 से 80% लोग जो है तंजीम में है। सबको पता है कि तंजीम क्या है और इसके तंजीम के फ़ायदे भी क्या हैं। इरम फातिमा का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के एक पसमानदा गांव फुलाड़ी यूनियन काउंसिल पिंड हाशिम से है। इरम फातिमा की कोशिश, जद्दोजहद और हौसले से भरपूर जिंदगी बिलाशुबा पूरी कौम के लिए रोशन और दरख्शां मिसाल है। इरम फातिमा का ताल्लुक जिस इलाके से है वहां बच्चियों को तालीम दिलवाना मायूब समझा जाता है। ताहम अपने वालिद की हौसला अफजाई और ख्वाहिश से इरम फातिमा अपने इलाके की पहली मैट्रिक पास लड़की थी। मैट्रिक के इम्तिहान के फौरन बाद इलाके के रस्म रिवाज के मुताबिक इरम फातिमा की शादी हो गई। शादी के कुछ ही अरसे बाद इरम फातिमा के शौहर खालिक हकीकी से जा मिला। ये अजीब इत्तेफाक था कि उसी दिन अल्लाह ताला ने इरम फातिमा को एक बेटे से नवाजा। अब इरम फातिमा पर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बेटे की कफालत की जिम्मेदारी भी थी। मेरे खामद की डेथ के बाद वालिदैन ने भी सपोर्ट किया, ससुराल वाले भी करते थे, लेकिन मैं सिर्फ एक खुद अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा बच्चा भी था। तो उसके लिए फिर कोशिश थी मेरी कि मैं खुद करूं, और फिर मेरे अपने वालिद साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके। एज अ PTC टीचर मैंने स्कूल को ज्वाइन किया। एक दिन मोहल्ले में खवातीन का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, वहाँ पे गई तो एक खातून उनको बता रही थी कि हरिपुर के अंदर SRSC एक इदारा है जो खवातीन की तरक्की के लिए काम करता है, और खुद आते हैं और फंड्स देते हैं और ट्रेनिंग्स करवाते हैं। 21 जुलाई 1999 को SRSP की रहनुमाई में इरम फातिमा ने दीमा एसोसिएशन बनाई और बतौर सेक्रेटरी सोशल वर्क का आगाज किया। जब हमने मसला अपना बताया जी कि हमारे महल्ला जो है उसका पानी का मसला है, तो फिर बाकायदा SRSP ने जो है उस वक्त हमें स्कीम दी। हमने बड़ी कामयाबी के साथ उस स्कीम को जो है चलाया, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो इससे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, इलाके के लोग हमारी फैमिली की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मज़ीद लोग मेरी बात मानना शुरू हो गए। इरम फातिमा ने बतौर कम्युनिटी एक्टिविस्ट मुख्तलिफ गाँव और यूनियन काउंसिल की सतह पर खवातीन की 37 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और फिर यूं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के साथ मिलकर पिंड हाशिम खान नेटवर्क जैसी NGO की बुनियाद डाली। SRSP ने एक और काम ये किया कि हमें बतौर एक्टिविस्ट दूसरी यूनियन काउंसिलों के अंदर भी उन्होंने हमसे काम लेना शुरू किया। तो हम वहाँ पे जाया करते थे, फिर लोगों को बताते, और इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि उस चीज़ ने हमें इतना ज़्यादा सिखा दिया कि हम एक तरीके से दूसरे इलाकों में तंजीमें बनाना शुरू की, तो हमारी बेस बन गई। सोशल मोबिलाइजेशन के हवाले से हमारे पास वो स्किल आ गई। और जो दूसरा बड़ा फ़ायदा हुआ कि पूरे हरिपुर की ये जो 37 यूनियन काउंसिल हैं, इनमें मज़ीद ख़वातीन के साथ और मर्दों के साथ भी हमारे ताल्लुक़ जो है वो कायम हो गया। फार्म फॉरेस्ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट नर्सरियाँ देता है, और उन्होंने हमें नर्सरियाँ लगाने का एक प्रोजेक्ट दिया। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो डायरेक्ट मिला, जो पैसे की सूरत में इदारे को मिला, नेटवर्क को, और उस पर फिर हमने 14 नर्सरियाँ लगाईं और हमने बड़ी कामयाबी के साथ जो है हमारी खवातीन ने वो नर्सरियाँ लगाईं। फिर हमारी जो नर्सरियाँ थी वो कामयाब रहीं, खवातीन को उससे इनकम आई, और उसके बाद सिलसिला जो है वो चल निकला हमारा। अपनी जिंदगी के नशेब फराज की बदौलत इरम फातिमा खवातीन के मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकती थीं। लिहाजा इरम फातिमा ने 5 गांव की 3 यूनियन काउंसिल्स में 50 खवातीन के साथ मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में बतौर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का काम किया, और बहुत जल्द ये खवातीन अपने घरों में रहते हुए अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से खुद कफील हो गईं। बिलाशुबा ये सोशल सेक्टर में एक बहुत बड़ा कारनामा है।
RSPN की टीम आई और उन्होंने आके हमारे नेटवर्क की असेसमेंट की कि आया ये जो नेटवर्क है इसको लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, तो और क्या अब ये जो नेटवर्क है इस काबिल हो चुके हैं कि ये सोशल मोबिलाइजेशन खुद कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर। तो फिर इस तरह हुआ कि जब असेसमेंट की गई और फिर उन्होंने जब कवरेज देखी तो फिर उन्होंने कहा जी कि PHCAN जो है पिंड हाशिम खान नेटवर्क के लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है काम कर सकता है। इरम फातिमा और उनकी तंजीम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने न सिर्फ गरीब खवातीन को बचत का हुनर सिखाया बल्कि विलेज बैंक के नाम से उनके लिए एक मुनफरिद इदारे का कयाम भी अमल में लाई। LSO ने खुद वो विलेज बैंक बनाया और अब एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे हमारा जो विलेज बैंक है वो काम कर रहा है, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन जो विलेज बैंक की है वो LSO के साथ रहती है। यूं जिंदगी के बेरहम थपेड़ों को खातिर में न लाते हुए इरम फातिमा ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से LSO तक का सफर इंतहाई खुशउस्लूबी से तय किया। फर्ज करें अगर इरम फातिमा जिंदगी के नशीब फराज का मुकाबला करने के बजाय उनके आगे हथियार डाल देती तो शायद आज उनकी दास्तान कहीं भी सुनाई न देती। अज़्म हिम्मत की पैकर इस खातून को रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया और आज ये इस काबिल हैं कि अपनी कम्युनिटी के मसाइल को न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी डिस्कस कर सकती हैं। ऐसी खवातीन जो कभी कमजोर और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थीं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में फ़ाल होने के बाद न सिर्फ अपने घराने और इलाके के मसाइल हल करने के काबिल हो चुकी हैं बल्कि अब अपने इदारों के जरिए अपनी तवानाइयों और सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने मुकद्दर के फैसले खुद करने का एतमाद पैदा हो रहा है। ये तमाम खवातीन अब मुल्क की दूसरी खवातीन के लिए अज़्म और हिम्मत की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आई हैं।